چیف کو کانجو میں سیلاب کی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ مٹا اور بحرین میں سیلابی پانی سے شاہراہیں متاثر ہوئی ہیں، جبکہ کالا میں تیز بارش سے 165 گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ سارے معاملات پر وزیراعظم شہباز شریف کو اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے اور وزیراعظم کی جانب سے ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ فوری طور پر امدادی سامان پہنچایا جائے، لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور جو لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر حفاظتی مقامات پر منتقل کیا جائے۔ اس وقت وزیراعظم شہباز شریف سوات کے علاقے کانجو میں موجود ہیں، جہاں پر امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ Jet fuel, since we have already visited the area, sir, heavy machinery already present in the area is deficient on fuel supply. We need to provide jet fuel, diesels to them. If we could use some, if one jet can be provided and we can provide diesels, I am sure, sir, in the next 3 to 4 days we can create a 4x4 road or even a pedestrian track where people can walk out of it. The distance between Kalam and Bahrain is 35 kilometers. Already 8 kilometers out of that has been rehabilitated. If we can focus, once we are done with the rescue operation and focus on the road rehabilitation, we would be able to overcome this disaster. And Steel Bridges Army has been gracious and they have already committed to provide steel. آپ کو ڈی سی صاحب نے بتایا سر، ہمارا جو سوات میں جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہے سر وہ زیادہ ہوا ہے، اور وہ زیادہ جو ہے سر یہ اپر سوات میں کالام، بحرین اور اب تو کوزہ کیلا، کیونکہ سر یہاں پہ ریور کا جو سپین ہے وہ نیرو ہے، تو جو چیز بھی سر ریور کلیننگ جتنے اسٹرکچرس تھے وہ اس نے کیا ہے، جو سر فارچونیٹلی ہمارا جو اس میں ہیومن لاس ہے وہ بڑا کم ہے، وہ ٹوٹل سر ہمارے 22 ابھی تک جو ڈیتھس ہیں وہ رپورٹس ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو ہاؤسز ڈیمیجڈ ہیں سر وہ ٹوٹل 165 ہیں، جو کچھ یہاں پہ سر جو اندر روڈ ہیں مٹا میں اور بحرین میں جو لوکل روڈز ہیں وہ کافی سر ڈیمیج ہوئے ہیں، جس میں 200 میٹر کا 300 میٹر کا پیچ، لیکن وہ سر اس پہ ہمارا جو ہے وہ CNW ڈپارٹمنٹ وہ کام کر رہا ہے۔ ہمارا سر جو مین ایشو ہے جو ہماری نیشنل ہائی وے ہے سر، یہ منگورا سے یہ اس طرف دریا کے سر اس طرف چلتی ہے ایسٹ آف دا ریور، اور یہ مدین تک جاتی ہے، اور ایک یہ پروونشل ہائی وے ہے سر جو مدین تک جاتی ہے، اور مدین سے پھر ایک ہی سڑک ہو جاتی ہے سر جو کلام میں مدین سے آگے یہ ویسٹ آف دا ریور چلتی ہے۔ تو زیادہ جو ڈیمیجز ہیں سر ہمارے وہ بیسیکلی یہاں پہ ایک جگہ ہے سر، میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس پہ ذرا دیکھا نظر آ رہا ہے، تو یہ ہمارے سر فتح پور سے لے کے تو بحرین تک سر ملٹیپل جگہوں پہ 4 سے 5 برج ڈیمیج ہوئے سر، ایک قندیل برج ڈیمیج ہوا جو کہ لیٹرل ہے سر اس طرح، اور مدین سے جو ہے سر 2 برج ادھر ڈیمیج ہو گئے تھے سر، بحرین والا جو برج تھا سر وہ سبمرج تھا، اور یہاں پہ سر 3-4 جگہوں کے اوپر جو روڈ تھا سر 200 سے 300 میٹر وہ واش اوے ہو چکا ہوا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 36 افراد جان کی بازی ہار گئے، 1900 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ سیلاب سے مجموعی ہلاکتیں 1162 ہو گئیں۔ ملک کے 72 اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ملک بھر میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری۔ NDMA رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 36 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 1941 افراد زخمی ہو گئے۔ سیلاب اور بارشوں سے اب تک 1162 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ سندھ میں 405، خیبر پختونخوا میں 257، بلوچستان میں 249 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح پنجاب میں 187، آزاد جموں اور کشمیر میں 41، گلگت بلتستان میں 22 اور اسلام آباد میں ایک شخص جان سے گیا۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر 3554 افراد زخمی ہوئے۔ سیلاب سے 243 پل تباہ، جبکہ 5063 کلومیٹر شاہراہوں کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10,51,000 سے زائد گھر متاثر، جبکہ 7 لاکھ سے زائد مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ ناظرین، بلوچستان کے متعدد اضلاع میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ قومی شاہراہیں اور رابطہ سڑکیں بند ہونے سے اشیاء خورنوش سمیت دیگر اجناس کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 254 تک پہنچ چکی ہے۔ کوئٹہ سے فضل طواب کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال نے تباہی کی نئی داستان رقم کر دی۔ بولان کے علاقے میں پلوں کو نقصان پہنچنے سے کوئٹہ سے جیکم آباد، سکر اور سندھ جانے والی قومی شاہراہ 10 دنوں سے مکمل طور پر بند ہے۔ لورلائی، ڈی جی خان اور زوب دنسر کے مقام پر خیبر پختونخوا اور پنجاب جانے والی شاہراہ بھی بحال نہ ہو سکی، جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کے ساتھ صوبے میں خوراک کی کمی اور غذائی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ جلمکسی، صوبت پور، ڈیرہ الایار، لسبیلا
کوئٹہ سمیت دیگر اضلاع تاحال سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں کے ہزاروں متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ادھر گیس پائپ لائنیں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے صوبے میں گیس کی سپلائی تاحال معطل ہونے کے ساتھ مواصلاتی نظام بھی درم برم ہو کر رہ گیا ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث کوہلو، سنجاوی، زیارت، قلعہ عبداللہ، مسلم باغ اور پشین سمیت دیگر اضلاع میں جہاں رابطہ سڑکیں شدید متاثر ہوئی ہے، وہیں زرعی زمینوں پر کڑی اربوں روپے کی فصلات اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ باغات سارا تباہ ہوا ہے۔ میں ڈی سی صاحب سے لے کر وزیر اعظم تک میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سروے ٹیم کو آ جائے، ہمارا نقصانات کو ازالہ دی جائے، ہم بہت پریشان ہیں۔ بلوچستان کے متاثرہ اضلاع میں پی ڈی ایم اے، پاک فوج، ایف سی اور ضلعی انتظامیہ سمیت دیگر اداروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر زمینی اور فضائی ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ فضل طواب، 92 نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ جل مکسی کے علاقے میرپور گوڑ غلام حسین وزدانی میں خواتین اور بچوں سمیت 60 سے زائد افراد سیلاب میں پھنس گئے ہیں۔ سیلاب میں پھنسے کئی بچوں کی طبیعت ناساز ہونے لگی ہے، جبکہ خوراک کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے۔ متاثرین نے پاک فوج اور ضلع انتظامیہ سے ریسکیو کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جھل مکسی کے علاقے سے، جہاں پر سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جن کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی ہے۔ سیلاب میں پھنسے کئی بچوں کی طبیعت ناساز ہو چکی ہے اور خوراک کی بھی شدید قلت ہے۔ متاثرین نے پاک فوج اور ضلع انتظامیہ سے ریسکیو کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سیلاب متاثرین ہیں جن میں اب خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جن میں خوراک کی بھی شدید قلت پائی جا رہی ہے اور طبیعت بھی ناساز ہوتی جا رہی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کانجو میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ کے پی کے دورے پہ آیا ہوں اور کلام سے لے کے سوات پورا میں نے کلام میں ہم نے جا کے لوگوں سے میں ملا ہوں اور وہاں پر ان کی جو احوال جانے، ان سے گفتگو کی۔ وہاں پر ایک تو کافی سارے جو سیاح ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ افواج پاکستان کے ہیلی کاپٹرز ڈیلی ان کو وہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی میں نے سیاحوں سے ملاقات کی اس سینٹر میں، یہ جو آرمی کا سینٹر ہے، یہاں پر خواتین، بچے، مرد یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں سے ان کو انشاءاللہ روڈ ٹرانسپورٹ سے ان کے جو گھر ہیں وہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ راستے میں مدین، کالام، بحرین بہت یعنی دریا کے ساتھ جو تباہی ہوئی ہے، ایک تو میں اس کو کہوں گا کہ آفت تو آئی ہے، ایک ریلا تو آیا پانی کا بہت شدید، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غلط پلاننگ کی وجہ سے، جس کو میں مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں، کہ جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر ان کو تعمیر کیا گیا، وہ بڑا غلط تھا۔ وہ پانی میں آنن فانن سب وہ مسمار ہو گئے، بہہ گئے۔ اسی طریقے سے گھر جو ہیں وہ بیچارے لوگوں کے وہ ان کو نقصان پہنچا، مگر راستے میں سڑکیں جو ہے ہائی وے جگہ جگہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے، پل جو ہیں وہ سٹیل بریجز وہ بہہ گئے ہیں، تو بہت یہ نقصان ہوا ہے۔ اور پوری طرح حکومت پاکستان صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اور افواج پاکستان دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں عوام کی بحالی کے لیے۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، صوبائی حکومت اور تمام جو منتخب نمائندے، سب انتظامیہ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ کلام میں ہزاروں سیاح ہیں، لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل قمر باجوہ صاحب کا، چیف اویئر سٹاف کا، سب مل کر
हेलीकॉप्टर्स उन्होंने मुहैया किए हैं और वो दिन रात वो उनको इनखला जारी है। और मुझे अभी यहाँ पर बताया है कि कल तक इंशाअल्लाह, कल शाम तक उम्मीद है कि बाकी भी जो सयाह वहाँ पर मौजूद हैं वो इंशाअल्लाह उनका इनखला हो जाएगा। ये जो तबाही आई है यहाँ पर, तो दरिया जो है वो बिफर गए और सिंध में, बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचाई और तमाम मैदानी इलाके, वो लगता है कि समंदर वो हर तरफ फैल गया है और 1000 से ज़्यादा जानें वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। हज़ारों लोग ज़ख्मी हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए और फसलों का बेपनाह नुकसान पहुंचा है। मैं सिंध में हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं, लाखों एकड़ वो बिल्कुल तबाह हो गई। खजूर के दरख्त, चावल की फसल, कपास की फसल, उधर जाफराबाद में, नसीराबाद में और बाकी जगहों पर तबाही हो गई है। फसलें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए। तो जो ये जानवर जो हैं वे बह गए। तकरीबन 7 लाख जानवर जो हैं वो बह गए हैं और सब चले गए, पानी के हवाले हो गए और लाखों लोग इस वक्त आसमान में बैठे हुए हैं। तो बड़ी कोशिश के साथ लाखों लोगों की जानें बचाई गई हैं, उनको महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है। तो मैं ये इसकी पूरी कौम को, मैं उनकी दुआएं हैं, उनकी काविशें हैं, मैं शाबाश देता हूँ NDMA को, PDMAs को, सूबाई हुकूमतों को और अफवाज पाकिस्तान को, जिनके अफसर और जवान ख़ुद इस सारी काविश की निगरानी कर रहे हैं। मुझे भी बताया गया है कि कल सिपह सलार जनरल बाजवा भी इस इलाके में आए थे और उन्होंने बड़ी हदायत दी हैं कि जल्द से जल्द जो मॉस्को में पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर चौधरी सरवर ने 1 लाख सैलाब मुतासरीन को राशन फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की कि वो मुसीबत की इस घड़ी में दिल खोल कर हम वतनों की मदद करें। तफसीलात के लिए देखते हैं खालिद वारसी की रिपोर्ट। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानियों की मदद के लिए ग्लासगो में भी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने काम शुरू कर दिया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कम्युनिटी रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें अहम कम्युनिटी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर चौधरी सरवर ने पाकिस्तान में सैलाब से पैदा होने वाली तबाकारियों से आगाह करते हुए शुरका से मुतासरीन की भरपूर मदद करने की अपील की। चौधरी सरवर ने इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से फौरी तौर पर दिए गए एहतियात के हवाले से भी आगाह किया। इस मौके पर चौधरी सरवर की अपील और कोशिशों पर 27,000 पाउंड रकम जमा की गई। उनकी अपील पर मुख्तलिफ शख्सियात और इदारों ने भी मुतासरीन सैलाब की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरवर का कहना था, इंशाअल्लाह 1 लाख पाउंड का टारगेट है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख लोगों को पाकिस्तान में राशन फराहम करेंगे। एक पैकेज की लागत 30 पाउंड होगी। कोई भी इस पैकेज को स्पॉन्सर कर सकता है। हमने टारगेट सेट किया है कि हम 1 लाख लोगों को पाकिस्तान में इंशाअल्लाह राशन फराहम करेंगे और एक पैकेज जो है एक फैमिली के लिए 30 पाउंड, जिसका मतलब है कि 1 पाउंड ए डे खर्च से आप एक फैमिली को 1 महीने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मैं पुरजोर अपील करता हूँ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, वो दिल खोल कर मुखय्यर हजरात जो हैं अपने भाइयों की मदद करें। और मुझे खुशी है कि मैंने चंद घंटों में अपने दोस्तों से टेलीफोन पे राब्ते किए हैं और माशाल्लाह 27,000 राशन पैक जो है उनकी कमिटमेंट हमारे साथ हो चुकी है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द चंद हफ्तों में इंशाल्लाह अपना 1 लाख राशन पैक का टारगेट जो है वो हम इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हम रेंजर्स के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ और दूसरी जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर अपने लोग जो हैं सैलाब से बेघर हुए हैं
उनकी मदद करें। इजलास में अमीन मिर्जा, मलिक इमरान, फखर इकबाल चौधरी और मजहर नजीर समेत दीगर रहनुमाओं ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों की बढ़ चढ़कर मदद करने की यकीन दहानी कराई। मलिक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो। ब्रेडफोर्ड में तहरीक के हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के चेयरमैन राजा निजाबत हुसैन को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे पाकिस्तान का एजाज़ मिलने पर उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका अहतमाम मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत DC चौधरी आसिफ अली ने किया। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की और राजा निजाबत हुसैन को सितारे पाकिस्तान मिलने पर मुबारकबाद पेश की। तफसीलात देखते हैं वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट में। तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन का काबिल फ़ख्र एजाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा पाकिस्तान देने का ऐलान कर दिया। राजा नजाबत हुसैन को सितारा पाकिस्तान मिलने की खुशी में ब्रेडफोर्ड में तकरीब हुई, जिसकी निज़ामत के फ़राइज़ चौधरी यासिर महमूद ने अदा किए, जबकि तकरीब का बाकायदा आगाज़ चौधरी आसिम अली की तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौका पर तकरीब के मेहमान खुसूसी राजा नजाबत हुसैन ने कहा कि तकरीब के इनेकाद पर आसिफ अली DC का मशकूर हूँ। ये एजाज़ तमाम कम्यूनिटी के लिए है। मेरी कामयाबी में सब दोस्तों और कम्यूनिटी का भी अहम किरदार है। वो ये अवार्ड तमाम मजलूम कश्मीरियों के नाम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुहिब वतन कश्मीरी की सर्विसेज को रिकगनाइज़ किया है। वहीं हम सब ने इस मौका पर सैलाब ज़दगान के लिए मकबूजा कश्मीर में अपने मजलूम बहन भाइयों के लिए भी खुसूसी तौर पर इस बात का तज़किरा किया कि यहाँ हम कश्मीर की आज़ादी के लिए तहरीक को ज़ोर शोर से चलाएँगे। वहीं अगले चंद दिनों में सैलाब ज़दगान के लिए भी अपनी पूरी कम्यूनिटी से, तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम कश्मीरियों से और इंसान दोस्त आवाम से अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की मदद करें। साबिक लॉर्ड मेयर गज़नफर खालिक ने कहा कि पहली दफ़ा ब्रेडफोर्ड से किसी कश्मीरी या पाकिस्तानी को ये अवार्ड मिला है और ये ब्रेडफोर्ड के लिए बड़ा एजाज़ है। साबिक मुशीर राजा शौकत खालिक और सरदार अब्दुर्रहमान ने कहा कि राजा नजाबत ने एक लंबा अरसा मसला कश्मीर के लिए दिया है। उम्मीद है कि हमारी आने वाली नस्लें भी कश्मीर के लिए कोशिशें जारी रखेंगी। साबिक काउंसलर चौधरी अल्ताफ हुसैन पोठी, साबिक लॉर्ड मेयर चौधरी औरंगजेब, काउंसलर नाजिम आजम और दीगर ने कहा कि राजा नजाबत ने बेलौस कश्मीर के लिए काम किया और उनको सितारा पाकिस्तान मिलना एक बड़ा एजाज़ है। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब के मेज़बान DC चौधरी आसिफ अली ने कहा कि राजा नजाबत हुसैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ और राजा नजाबत हुसैन का मुस्तकबिल में भी भरपूर साथ दें। तकरीब के शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा नजाबत हुसैन को आला पाकिस्तानी एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं जनाब राजा नजाबत साहब को जो सितारा पाकिस्तान मिला है उसके इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन ये इनकी जो कश्मीरी अवाम के लिए, वतन अजीज़ कश्मीर के लिए जो इनकी खिदमत थी उसके एतराफ़ में इन्हें दिया गया है, तो हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है। ये हमारे कश्मीरी पाकिस्तानी भाई को बहुत बड़ी एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने इनको ये आज़ाद दिया। इनकी बड़ी मेहनतें, बड़ी काशिश हैं आज़ाद कश्मीर के बारे में, मकबूजा कश्मीर के बारे में। अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है तौफ़ीक़ अता फरमा आगे बढ़ने की। जिस तरह पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, सैलाब की अपना फ्लडिंग की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो बेशुमार लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं, जो जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का जो नजराना पेश किया है पाकिस्तान के फ्लडिंग के अंदर, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बढ़ चढ़ कर उनके फंड रेजिंग के लिए या जहाँ तक भी हो सकता है हमें अपनी उनकी मदद करनी चाहिए। मैं दिल की अता गहराइयों से अपनी केतली अवाम की तरफ से राजा नजाबत साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो उनको सितारा इम्तियाज़ अवार्ड मिला है, और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इनका जो मकसद था उन्होंने ये रिकगनाइज़ किया और राजा साहब को इस अवार्ड से नवाजा। I would like to take this opportunity to thank the government of Pakistan for recognising Raja Najabat Sahab with the Star of Pakistan for his hard work on Kashmir and also on humanitarian issues. And as you know, the floods are taking place in Pakistan. गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो सितारा इम्तियाज़ उन्हें दिया, मैं समझता हूँ कि वो हकीकी तौर पर मुस्तहिक थे। कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत काम किया और अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया। राजा नजाबत साहब एक अनथक मेहनती इंसान है जो पूरी ज़िंदगी में उनकी कोई और दिलचस्पी नहीं रही सिवाय कश्मीर कॉज के, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कश्मीर कॉज के प्रमोशन में गुजारी है। कश्मीरियों की धड़कन है, इंशाल्लाह हम भी इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। कश्मीर के बारे में भी बात हुई, पाकिस्तान में जो सैलाब है उनके बारे में भी बात हुई। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो भी आगाज़ कर रहे हैं कि उनकी मदद कैसे की जाए। राजा नजाबत का ये जो इनको एजाज़ मिला है, मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए खुशी है। और राजा नजाबत साहब, सच्ची बात है, इन्होंने अनथक मेहनत की है और
बड़े कमिटेड हैं और ये डिजर्व करते थे ये अवार्ड। तकरीब में खालिद महमूद खालिक, चौधरी जहांगीर नगियाल, मोहम्मद ताहिर हनीफ, चौधरी बशीर गुज्जर, चौधरी मुमताज अहमद, मेहरान हुसैन, मुदस्सर शाह चौधरी ताज, सूफी मजहर और दीगर ने भी शिरकत की। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। बर्मिंघम के पिकविक स्पोर्ट्स ग्राउंड में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के ताउन से शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें चैरिटी मैच भी खेला गया। खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठाते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फैमिलीज़ के हमरा फंड रेजिंग इवेंट में शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बर्मिंघम के क्रिकेट के मैदानों में मशहूर क्रिकेटर 40 साला मोहम्मद वाजिद गुज़िश्ता साल कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज का शिकार होकर अपने प्यारों को दाग़े मफ़ारक़त दे गए। उनकी बरसी के मौका पर उनके अजीज़ अक़ारब और दोस्त अहबाब ने शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद किया। फंड रेजिंग इवेंट पैक वीक स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक्किद किया गया, जिसमें खाने पीने के स्टॉल्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। इस मौका पर चैरिटी मैच भी खेला गया। एक तरफ क्रिकेट मैच तो दूसरी जानब ख़वातीन और बच्चों की तफरीह का पूरा सामान मौजूद था। फंड डे में ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेस फैमिलीज ने बच्चों समेत शिरकत करके खुशगवार मौसम को खूब एंजॉय किया। इस मौका पर मुंतजिमीन चौधरी ज़ियारब यासीन, चौधरी गफ्फार अहमद, रुबीना खान, राजा कदीर, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद फैसल, शाहीम अकबर, नाजिम खान और दीगर ने कैंसर की बीमारी के मुतालिक आगाही देते हुए पोस्टर्स, मैसेजेस और तकरीरों के जरिए लोगों को बताया कि ये एक ऐसा खतरनाक मर्ज है जिसकी तशखीस पर भारी अखराजात आते हैं। शौकत खानम कैंसर अस्पताल इस बीमारी के इलाज मुआवजा के लिए काफी हद तक बेहतर काम कर रहा है, लिहाजा हमें इसकी फुल सपोर्ट करनी होगी। फलाही तंजीम की चेयरपर्सन पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी रुबीना खान और दीगर कारकुनों ने फंड रेजिंग के लिए भरपूर कोशिश की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 10,000 पाउंड के अतियात दिए। इस मौका पर मुंतजिमीन चौधरी ज़ियारब, रुबीना खान और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैंसर जैसी मोज़ी बीमारी नौजवानों में आम हो रही है। पाकिस्तान में शौकत खानम अस्पताल इस हवाले से भरपूर काम कर रही है। इस इदारे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे इवेंटों को हमें प्रमोट करना चाहिए जो गरीब लोगों की इमदाद करें, गरीब लोगों तक पहुँचें। अच्छे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, ये स्टोर हैं यहाँ पे, इनके तावन करें इनके साथ कि मजीद ऐसे ऐसे काम चलते रहें और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर हो। Really great turnout. We are here, we've got our own table, we're doing a tombola and we're also raising awareness on the cancer. All money I think raised today is going to go towards the Imran Khan Hospital. It's a wonderful day, wonderful community spirit. Today we've organised a charity event for our beloved brother who left this world, Wajid, who is a close friend of mine, and we organised a charity cricket match which is taking place today, and all the money is going to go to charity, and I urge everyone to give generously to the Just Giving page that we have provided on our site. To raise money for Imran Khan Cancer Hospital and in the memory of our dear brother Mohammad Wajid. We also want to raise awareness about cancer and how people can, raise money and do positive things. And together, as you can see today, we've all got together, all brothers and sisters, even the little children, every penny, leafleting, food, everybody's got together. And by the grace of Allah. शौकत खानम को पैसे जाएंगे मोहम्मद वाजिद की याद में, जिनकी डेथ हुई थी ब्रेन ट्यूमर से, 40 years old थे, और उनकी याद में इन्होंने ये पैसे जमा कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत से ऐसे लोगों को इन पैसों से फ़ायदा होगा जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। ये हमारा एक छोटा भाई जो वाजिद था, वो एक मुज़ी बीमारी कैंसर की वजह से वफात पा गया, तो उसके सिलसिले में हमने ये इवेंट किया है। उसकी चाहती के लिए क्रिकेट मैच है। इसके जो भी प्रोसीड होंगे वो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए वो हम फंड्स देंगे। We are here to obviously promote the charity event for the cancer, and obviously this will help all the people who are struggling with cancer. Today there is an event for the Imran Khan Cancer Hospital appeal. As you can see, there are many stalls. Everybody is enjoying themselves. फैमिली इवेंट में बच्चों के लिए तरह तरह की तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम किया गया था, जहां बच्चों ने खूब एंजॉय किया। देसी खानों के स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। पाकिस्तानी मलबूसात के स्टॉल्स ख़वातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। इवेंट के आखिर में मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और फातिह टीम में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजा हुसैन ने सैयद रिजवान हाशमी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ बरताने का सदर नामजद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी और PML क़ाफ की तंजीम साजी से मुतालिक अहम जिम्मेदारियाँ भी सौंप दी हैं। तफसीलात जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में।
सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने सैयद रिजवान हाशमी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बरतानिया का सदर नामजद कर दिया। उन्हें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी और PMLQ की तंजीम साजी से मुतल्लक अहम जिम्मेदारियां भी सौंप दी गयी। चौधरी शुजात ने सैयद रिजवान हाशमी की नामजदगी का ऐलान अपनी रहायशगाह पर मुलाकात के बाद किया। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुलाकात में सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन और सेक्रेटरी जनरल PMLQ तारिक बशीर चीमा का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि सैयद रिजवान हाशमी बरतानिया में पाकिस्तान की इमेज को मजीद बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की कि वो पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर मुलाकात करने वालों में चौधरी शाफी हुसैन, पीर सैयद अहमद शाह गुजराती, राजा हमादुल्लाह, अब्दुल्ला मकबूल, डॉक्टर इफ्तिखार कुरैशी, बार हाशमी और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौके पर सैयद रिजवान हाशमी ने भरपूर एतमाद करने और सदर काफ लीग बरतानिया नामजद करने पर सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का खसूसी शुक्रिया अदा किया। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से महफिल और लंगर न्याज का सिलसिला जारी है। मशरक़ी लंदन में सैयद शराज मसूद शाह की जानिब से लंगर हुसैनी का इंतज़ाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लामा ज़ीशान कादरी, नात ख्वां हाफिज़ मोहम्मद रज़ा, सैयद खज़र शाह और अली हसन ने खूबसूरत अल्फाज में नात व मनक़बत पेश की। तफसीलात मशरक़ी लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में। दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान मैदान करबला में इमाम हुसैन और उनके खानदान की अजीम कुर्बानी की याद में महाफिल और मजालिस का इंतजाम बड़े ज़ौक़ शौक और अकीदत व एहतराम के साथ करते हैं। मुहर्रम उल हराम की मजालिस और महाफिल के साथ साथ लंगर और न्याज का इंतजाम भी किया जाता है। इसी मुनासबत से मशरकी लंदन में सैयद शहराज मसूद शाह की जानिब से एक न्याज की महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज अलामा ज़ीशान कादरी ने खसूसी शिरकत की। डंडी स्कॉटलैंड से आए मारूफ सना खान, मोहम्मद अदील कासमी ने अपने खूबसूरत अल्फाज में नात और मुनक़बत पेश की। खूबसूरत कलाम ने शुरका महफिल के दिल मोह लिए, सभी झूमते रहे। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि करबला एक ऐसी अजीम दरसगाह है जिससे तमाम मकातब फिक्र फैज हासिल कर रहे हैं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपना पूरा खानदान शहीद करवा कर एक अजीम कुर्बानी दी, जिसको क़यामत तक याद रखा जाएगा। महफिल लंगर और न्याज के मेजबान सैयद शहराज मसूद शाह ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज की ये महफिल करबला के शहीदों की याद में मुनक्कद की गई है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस्लाम को सुरखरू किया और हक के ऊपर डट जाने का दर्स भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और ये हमारे बाप दादा के ज़माने से चलता आ रहा है और ये न्याज़े हुसैन है और मैं दुआ करता हूँ कि ये आगे भी मेरी नस्लों में चलता रहे। और आज हमने यूके में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह लंदन के अंदर हमारे साथ बहुत सारे साथी स्कॉटलैंड से तशरीफ लाए। डंडी स्कॉटलैंड से आए हुए मोहम्मद अदील कासमी ने कहा कि पैगाम हुसैन इंतशार उम्मत को दूर करने के लिए और आपस में इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पैगाम हुसैन ये इंतशार उम्मत को दूर करने के लिए और उम्मत की यकजहती के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। इसी वजह को लेकर और इसी पैगाम को लेकर ओवरसीज में पाकिस्तानी जो वतन अजीज के अंदर मुहर्रम में न्याज हुसैन दिलाया करते थे और सारी उम्मत को जमा करते थे, उसमें हर रंग व नस्ल का शख्स होता था। बिला तफरीक के रंग व नस्ल और मसलक लोग आके उस न्याजों से मुस्तफीद होते थे और लोगों अपने घर लेकर जाया करते थे। दियार गैर में भी पाकिस्तानियों ने उस मिशन को जारी रखा है कि हम यहाँ भी हुसैनी हैं और अपने इस मिशन को जारी रखेंगे। लिहाजा यहाँ बहुत खूबसूरत महफिल का इनेकाद हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें दूर से दावत दी और हम यहाँ इस न्याज पर हाजिर हुए। महफिल के शुरका ने अहले बैत की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल का इख्तिताम दुरूद सलाम और खुसूसी दुआ के साथ हुआ। पाकिस्तान में क़यामत खेज़ सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा हमवतनों की मदद के लिए अमरीका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुतहरिक हो गए। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुख्तलिफ तंजीमों ने मुहिम चलाकर 24 घंटों में $1.5 लाख जमा कर लिए। एक हफ्ते में $9 मिलियन जमा करने का हदफ है। तफसीलात देखते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर, घर बार कारोबार मवेशी फसलें सब कुछ तबाह हो गया। हम वतनों की मदद और दिलजोई के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी मैदान में आ गए। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए फंड जमा करना शुरू कर दिए। ह्यूस्टन में कम्युनिटी तंजीमों पर मुश्तमिल अमेरिका के सबसे बड़े पाकिस्तान फ्लड रिलीफ अलायंस ने पाकिस्तान में सैलाब जदगान के लिए 24 घंटे में $1.5 लाख जमा कर लिए, जबकि एक हफ्ते में $9 मिलियन जमा करके पाकिस्तान भेजे जाएंगे। फ्लड रिलीफ अलायंस ह्यूस्टन के लिए मुमताज ऑयल टाइकून जावेद अनवर की तरफ से $50,000, मुमताज बिजनेसमैन नसरुद्दीन रूपानी की तरफ से $25,000 और हारून शेख की तरफ से $10,000 देने का ऐलान किया गया। इजलास में मेंबर तंजीमों को अलायंस के कोऑर्डिनेटर सईद शेख और इलियास चौधरी ने पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी और मुस्तकबिल के इमदादी और बहाली के कामों से इजलास को आगाह किया। इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के कौंसल जनरल इब्रार हाशमी ने पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी से अपील की कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने मुसीबत ज़दा हमवतनों की दिल खोल कर इमदाद करें। आप सबसे गुजारिश है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक फ्लड रिलीफ फंड का इजरा किया है, वो इस्टेब्लिश किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसकी गाइडलाइंस दी हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पाकिस्तान काउंसलेट जनरल ह्यूस्टन की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। अब सबसे गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के उसमें अपनी डोनेशंस दें, कंट्रीब्यूशंस करें। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अलायंस के कोऑर्डिनेटर सैयद शेख का कहना था कि अलायंस के तहत पाकिस्तान में सैलाब जदगान की बहाली और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए भी कई मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। प्रोजेक्ट्स को जो ऑलरेडी हम फील्ड में कर रहे हैं उसे मजीद आगे बढ़ाने के लिए $500,000 की एक रिलीफ एफर्ट का हमने यहाँ पे सबने प्लेज किया है और हमें खुशी है कि हमारे चीफ पैटर्न सैयद जावेद अनवर साहब, जिन्होंने $50,000 की इनिशियल डोनेशन से इस एफर्ट को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। आज हमने इस मीटिंग में तकरीबन $1.5 लाख रेज़ किए हैं और बहुत जल्द हम $500,000 कम्युनिटी के रेस करके पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, जो कि बेनिफिट करेगा फ्लड के हवाले से। ह्यूस्टन में होने वाले अलायंस के इजलास में बताया गया कि अलायंस के तहत जमा होने वाली इमदादी रकम पाकिस्तान में हेल्पिंग हैंड्स के नेटवर्क के तहत मुतासिरीन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। इटली के शहर पादोवा में तीसरे सालाना टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इटली और यूरोप भर से स्टार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीमों ने हिस्सा लिया। तहरीक कश्मीर और दीगर जमातों के सियासी और समाजी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जीतने वाली टीमों पर इनामात की बारिश की गई। तफसीलात तनवीर इरशाद की रिपोर्ट में। इटली के शहर पादुवा में तीसरे सालाना टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनान समेत इटली भर से 44 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इनेकाद पादुवा क्रिकेट क्लब के सरपरस्त शफीक सेठ ने किया था, जबकि दीगर ऑर्गेनाइजर्स में अतीक अमीन, हाफिज साजिद, अनीस अमीन और दीगर अफराद शामिल थे। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज़हीरुद्दीन जफर, तहरीक कश्मीर इटली के सदर चौधरी बाबर वड़ाइच, साबिक सदर तहरीक कश्मीर महमूद शरीफ, चौधरी मुदस्सिर अली और दीगर शख्सियात थे। मेहमानों का गुलदस्तों और ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में टीमों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जबकि फाइनल में पादुवा क्रिकेट क्लब ने शानदार खेल पेश करते हुए जिसानू क्रिकेट क्लब की टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में फतह हासिल कर ली। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ €5,000, जबकि रनर अप टीम को €2,000 इनाम दिया गया। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डालकर जीत का जश्न मनाया। टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़हीरुद्दीन जफर ने कहा, इस किस्म के टूर्नामेंट से नौजवान नस्ल में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। टूर्नामेंट में इतने जोश जज्बे के साथ पूरे इटली से टीमें तशरीफ लेके आई और पूरे यूरोप से प्लेयरों ने हिस्सा लिया। रियली दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। और ये इस तरह के इवेंट बिल्कुल होने चाहिए। ये चंद सालों में इस कामयाब टूर्नामेंट को देखकर पूरे इटली के अंदर एक नया जज्बा पैदा हो चुका है। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए सदर तहरीक कश्मीर इटली चौधरी बाबर वड़ाइच ने पादुवा क्रिकेट क्लब के सरपरस्त शफीक सेठ और इंतजामिया को कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि प्रदेश में इस किस्म के इवेंट से न सिर्फ कम्युनिटी के दरमियान मेल जोल बढ़ता है, बल्कि मकामी कम्युनिटी में भी मुस्बत असर जाता है। ये इसी तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद करते रहें और सेहतमंद सरगर्मियाँ जारी रहें और इसी तरह पाकिस्तानी अवाम और सारे नौजवान इसमें
टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर शफीक सेठ ने शिरकत करने वाले मेहमानों और टीमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इटली में क्रिकेट के फरोग के लिए वो अपनी काविशों को जारी रखेंगे। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेहमानों में एजाजी शील्ड्स और दीगर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। तनवीर अरशाद, 92 न्यूज़, इटली।